آپ لوگوں کی بھرپور تعلیموں میں میں دعوت خطاب دوں گا جناب آپ کے مہمان خصوصی طارق محمود رحمانی صاحب کو کہ آپ کھڑے ہو کر طارق محمود رحمانی صاحب کا استقبال کریں۔ رحمانی ویلفیئر زندہ باد مضبوط پنجو اتحاد رحمانی ویلفیئر زندہ باد مضبوط پنجو تشریف رکھیں۔ پہلے ایک وضاحت کر دوں، جن لوگوں نے ابھی تقریب حلف برداری میں جن یونٹس نے حلف اٹھائے ہیں ان یونٹس کی مرکزی قائدین کے ساتھ گروپ فوٹو جو ہے وہ پروگرام کے آخر میں ہم انشاءاللہ العزیز مینیج کر لیں گے۔ چیئرمین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور باقی احباب جو آئے ہوئے ہیں وہ سارے اس حوالے سے اویلیبل رہیں گے۔ ہلو وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولو کم کر۔ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اور دوسری جگہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اور پھر ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ میرے انتہائی معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تھکاوٹ، جسمانی مجبوریاں اور معذوریاں اپنی جگہ، لیکن آپ کی محبت ایک ایسی طاقت ہے جو کسی مردے میں بھی جان پھونک سکتی ہے۔ میں آپ سب احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم سب لوگوں کو جو پنجاب سے آئے ہیں محبت دی اور ہمارا مان بڑھایا۔ برادران نظام، قرآن کریم کے جو مختلف آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں ان سے بات شروع کرتے ہوئے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کی پھر بات کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، بے شک ہم نے تمہارے قبیلے اور گروہ اس لیے بنائے ہیں کہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے، کسی قبیلے سے، کسی گروہ سے، کسی برادری سے تعلق رکھنا جو ہے یہ باعث عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک باعث عزت کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ نیکوکار ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں، کسی کا کاروبار، کسی کا بزنس، کسی کا کام، اس کی القاسب و حبیب اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو ہاتھ سے مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں انہیں ہم کم ترین سمجھ لیتے ہیں، اور اسی بات پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہم نے کس کو کتنی عزت دینی ہے۔ برادران محترم، اگر آپ تقوی کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور یقیناً مجھ سے تو بہتر ہیں، تو پھر تسلی رکھیں کہ جو لوگ یہ ایسا کام کر رہے ہیں، جو معاشرے میں آپ کو سٹیٹس اگر نہیں مل رہا تو پھر اس پہ پریشان نہ ہو۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ گناہ اپنے لیے کما رہا ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ انسان اپنی حالت پہ جب تک
परेशान ना हो, अपनी मौजूदा हालात पे परेशान ना हो, तब तक तब्दीली के लिए सोचता नहीं है। हम ये बात तो करते हैं कि मुआशरा हमें लौटा नहीं रहा वो जो हम कुछ कर रहे हैं मुआशरे के लिए, लेकिन कभी थोड़ा सा ये सोचिए, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बनने से पहले हम मुआशरे को क्या दे रहे थे, हमारा क्या रोल था? सवाए बातों के, सवाए गिले करने के, सवाए ऐसी बातों के कि जी हम मलक साहब के पास गए हैं, उन्होंने हमें वो इज्जत अफजाई हमारी नहीं की, सवाए बातों के हम कुछ नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको ये सिखाता है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। आपको रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको तैयार करता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि बेशक अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपने अनफुस को खुद नहीं बदलती। इस अंदर को नहीं बदलेंगे, इसको ऐसे ही लेके बैठे रहेंगे, इसमें ऐसे ही एहसास कमतरी रहेगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, आपके लाखों तारिक महमूद भी आ जाएं, लाखों सैफुल्लाह ज़िया भी आ जाएं, आपकी किस्मत को नहीं बदल सकते। आपको इधर से बदलना होगा। और इधर से कैसे बदलते हैं? डॉक्टर शफी साहब कह रहे थे कि एक अच्छे वर्कर की खूबियां क्या हैं। मैं कहता हूं पहले वर्कर की खूबियां बनाएं। वर्कर को पता होता है उसने करना क्या है। बदकिस्मती से हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने करना क्या है। अभी तो हम वर्कर ही नहीं बने, अच्छे वर्कर तो बाद में बने। पहले सीखना ये होगा कि हमारी मंजिल क्या है और उस पे चलने वाला रास्ता क्या है। जो हमें समझ आया, जो सैफुल्लाह ज़िया साहब, तारिक महमूद, असगद पहलवान और खालिद महमूद चिश्ती, हम चार लोग बैठ के जो हमने तय किया वो कुरान की तरीमात के मुताबिक ये था कि हम आपके पास जाएं और आपसे कहें वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, आए नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे के मामन बन जाएं। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और बुराई और जुल्म के कामों में एक दूसरे की मदद ना करें। नेकी का काम क्या है? कोई बंदा किसी का रब नहीं हो सकता, क्योंकि रब अल्लाह की ज़ात है, पालने वाला सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह अपनी मखलूक के लिए, बाज़ मखलूक के लिए करने वाला काम है कि वो लोग जो आज किसी वजह से आजमाइश में पड़े हुए हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो अपने बच्चों को दवाई के लिए पैसे नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों की तालीम जारी नहीं रख सकते, उनके लिए कुछ कर गुजरे। जो गुर्बत की इंतहाई लकीरों पे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि वो उन्हें ये हुनर सिखा दें कि रोज़ी कमानी कैसे है। उनकी ख़वातीन को हुनर सिखा दें। जिन लोगों के पास पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है, उनको ये पानी मुहैया कर दें। और करें कैसे? ये नहीं कि हमारे पास कोई कानून का ख़जाना आ गया था और हमने सोचा कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो आपस में बांट दें। ऐसा हरगिज़ नहीं। हमने ये सोचा कि अगर हम 10 लोग इकट्ठे होते हैं और उन 10 में से 2 इंतहाई लकीर के नीचे हैं और 8 पे इतनी करम नवाजी ज़रूर है कि उनके पास अपने खाने के लिए रोटी मौजूद है, तो हमने कोशिश ये की कि उन 10 से ये कहें कि आप सारे मिल के इन रोटियों को इकट्ठा कर लें, एक प्लेटफॉर्म बना लें, उस पे 10 के 10 इकट्ठे बैठ के खाना शुरू कर दें। आप में से कोई भूखा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने काम शुरू किया था तो हम 4 लोग थे। अब तादाद मुझे नहीं पता कि इस मिशन में कितने लोग मेरे साथ शामिल हो चुके हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया।
अभी प्रोग्राम पे हूँ मैं, अभी चल रहा है, 1 घंटा लगेगा। जिस तरह सैफुल अज़िया साहब चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट आपको बता के गए कि हम चाहते ये हैं कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए से आप में इत्तेहाद पैदा हो जाए। ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये इनको हासिल करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। मंजिल सामने नज़र आ रही हो लेकिन रास्ते का पता ना हो तो मंजिल खो जाती है। हमने इसके लिए बाकायदा प्लान किया, हमने उस रास्ते को मुतय्यन किया कि किस रास्ते पे चलते हुए हमें ये मंजिल मिल सकती है। हम ये समझते हैं कि इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ दे के हम इस मंजिल को पा सकते हैं। 1 है और 2 11 है। जब आप 1 से 2 हो जाएंगे और दूसरा काम आप ये करेंगे कि मैं से हम बन जाएंगे, अपनी ज़ात के खौल से निकलेंगे, अपने जज्बात की कुर्बानी देना सीख लेंगे। कौलुम मारूफुम व मग़फ़िरतुम खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। आप इसकी मिसाल बन जाएंगे, अच्छी बात कहने का सलीका आपको आ जाएगा और दूसरों की गलतियों पे चश्मपोशी करना सीख जाएंगे, तो फिर आपकी मंजिल जो है आसान हो जाएगी। राब्ते को बढ़ा लेंगे, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। रब्त कायम फर्द मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। ये सीख लेंगे, अपनी रूह के अंदर दाखिल कर लेंगे, तो फिर तारिक महमूद को फिक्र नहीं है कि वो पंजाब में रहता है या सऊदीया में रहता है, फिर आपकी इज्जत कोई नहीं ख़त्म कर सकता। कुछ करने की बातें हैं, कुछ से बचने की बात है। हसद से बचना शुरू करते हैं, अपने भाई की इज्जत को अपनी इज्जत समझना शुरू करते हैं। जो जो चीजें आपको हसद में मुब्तला करती हैं, किसी की अच्छाई, अगर आप किसी की इज्जत को अपनी इज्जत समझना शुरू कर देंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि वो बंदा आपकी इज्जत में कई गुना इजाफे का बाइस बन जाएगा। माशरे में आपका मकाम बदलने के लिए जो माशरे से हमें गिला है, ज़रूरी है कि माशरे के लिए कुछ ऐसा करें। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास की तफसीर बन जाए। लोगों के लिए बेहतर वो है, खैरुन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फ़ायदामंद है, जो लोगों के लिए नफ़ामंद है। अगर आप किसी की फलाह नहीं कर सकते तो खुदा के लिए इतना तो कर सकते हैं कि उसका नुकसान ना करें। मैं ये कहा करता हूँ कि अगर आपको ये तौफीक नहीं है कि बैठ के किसी की बेहतरी के लिए सोच सके, तो खुदा के लिए आप बैठना तो शुरू करें। जब आप बैठेंगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा बैठेंगे, आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं, करने के लिए सिर्फ बातें हैं, तो कम से कम आप इस जो कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है, जो इंसानों की शक्ल में आपके पास एक एसेट है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कि मेरा फलां से तल्लक है, आपका ये काम जो फंसा हुआ है मैं फलां से कहता हूँ, उससे करवा देता हूँ, मैं तारिक महमूद साहब से कहता हूँ, मैं सैफुल अज़िया से कहता हूँ। एक लड़ी में परोए जाएंगे, आपका राब्ता एक से दूसरा चिराग जलेगा और फिर इन चिरागों की रोशनी जो है वो आपकी रात को रोशनी में बदल देगी, दिन में बदल देगी। तालीम के बगैर कुछ भी कर लें, तब्दीली नहीं आने वाली। अपने ऊपर फर्ज कर लें कि हर वो बच्चा जो इस एज ग्रुप में है, जिसको स्कूल जाना चाहिए, उसको स्कूल भिजवाएं। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन पे भी दस्ते शफकत रखें, बच्चों को एनकरेज करना शुरू करें। किस तरह एनकरेज करेंगे? आपके वो बच्चे जो मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए हैं, मैट्रिक में अगर कोई बच्चा आपका 1000 से ऊपर नंबर ले जाता है, आपने एक फंक्शन किया है,
آپ اس کو سٹیج پہ عزت کے لیے بلا لیں، اس کے والدین بھی خوش ہو جائیں گے، وہ بچہ بھی خوش ہو جائے گا۔ پہلوان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ لوگ پرواز کر جاتے ہیں تھوڑی سی عزت ملتی ہے، وہ پرواز نہیں کر سکے گا۔ آپ نے عزت دے کے اس کے پر کاٹ دیے۔ حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر، تھوڑی برداشت پیدا کر لیں۔ اپنے لوگوں کو دیکھیں، بڑا آسان ہے کسی کی ٹانگ کھینچنا، لیکن بازو سے پکڑ کے اوپر لانے میں محنت لگتی ہے۔ میں یہاں کسی کو نیچے کرنا چاہوں تو مجھے خود بھی نیچے ہونا پڑے گا۔ جہاں جہاں ہم کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچ لیجئے آپ خود بھی اپنے مقام سے گرتے جا رہے ہیں۔ بچوں کو اپریشیٹ کریں، ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں جو کسی بھی فیلڈ میں کارہائے نمایاں اثر انجام دیتے ہیں۔ آپ کی ایفرٹ اس میں نہیں ہے، لیکن کسی پہ اللہ نے کرم کیا، کوئی بندہ جو ہے وہ ویسے نکل گیا اور دوسرے لوگوں سے بہتر پرفارمنس اس کی ہو گئی، تو آپ اس پرفارمنس کو اون کر لیں۔ وہ آپ کا بچہ ہے، اس کی اونرشپ لے لیں۔ جب آپ اونرشپ لے لیں گے تو اس میں بھی اپنائیت آ جائے گی۔ برادران محترم، عام طور پہ جو خیال ہے کہ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ والے آئیں گے، یہاں لہریں بہریں ہو جائیں گی، یہ سارے راستے گل و گلزار ہو جائیں گے، لوگوں کے مقدر کو رات ہی رات میں بدل دیا جائے گا۔ ایسا کوئی الادین کا چراغ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے نہیں ہے کہ جب تک آپ خود کوشش اور کاوش نہیں کریں گے، کسی قسم کی بہتری کی تبدیلی نہیں آنے والی۔ ہم مخالف ہیں اس بات کے کہ آپ آج کے دن بیٹھ کے بغیر کسی تیاری کے اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں MNA MPS چاہیے تو میں اس پہ کاٹا لگا دیتا ہوں، یہ نفی کی بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن آئیں، اپنے گلی محلے میں جہاں پہ آپ خیر کا فلاح کا کام کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کا فلاح کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور وہ بندہ جو آپ کے ساتھ شامل ہے لیکن آپ کا عہدیدار نہیں ہے، ہمت کر کے کوشش کر کے اس کو اس سیاست میں لے آئیں، لوکل باڈیز کی سیاست میں لے کے آئیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس کی سپورٹ بن جائیں۔ آپ سپورٹ اس کی بنیں گے، آنے والے دنوں میں لوگ آپ سے بارگین کر رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو نوکریاں بھی دیں گے، آپ اس MPA کے الیکشن میں ہماری جو ہے وہ سپورٹ کریں۔ آپ کو بارگین کرنا آنا چاہیے۔ ہمارے ایسے یونٹس ہیں جنہوں نے 50 سے ایک یونٹ نے 50 سے زائد نوکریاں لی ہیں، اور وہ طارق میں منہ سے نہیں لی۔ ہمارا کام آپ کو گائیڈ کرنا ہے، رہنمائی دینا ہے، آپ کی سرپرستی کرنا ہے، آپ کو مانیٹر کرنا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ہمیں کوئی شخص بھی اگر یہ چاہے، حکومتیں بھی اگر چاہیں کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے پیسے بانٹ کے وہ غربت کو ختم کر لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قارون کا خزانہ بھی ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے آپ ہنرمند بن جائیں، اپنی بیٹیوں کو ہنرمند بنائیں، وہ کم از کم اپنے گھروں میں رہ کے اپنا کچھ کرنا سیکھ لیں۔ بڑا آسان ہے اگر آپ اختلاف میں پڑھنا چاہیں۔ اختلاف بری چیز نہیں، مخالفت بری چیز ہے۔ آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ہی لوگوں سے مخالفت شروع کر دیں گے تو پھر ہماری منزل جو ہے وہ گم ہو جائے گی۔ اور دعووں پہ نہ جائیں۔ آپ نے میری بات سنی تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، مجھے پرکھیں تو صحیح میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں کہ نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن میں بڑا واضح ہے کہ تم وہ کیوں باتیں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ دعووں کے ترازوں میں تو عظمت نہیں تلتی،
फीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता। समझें कि जो बंदा ये बात कर रहा है, वो जो कह रहा है, क्या वो उसका अमल भी उस तरह का है? अगर अमल उसका है, ठीक है, आपकी तसल्ली हो जाती है तो बेशक उसके पीछे लग जाए। लेकिन अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो खुदा के लिए अपना वक्त ज़ाया न करें। आपको पहले भी कई दफ़ा बुद्धू बनाया गया है, आप इतने सादा दिल न रहें। तू भी सादा है, चाल बदलता ही नहीं। हम भी सादा हैं, उसी चाल में आ जाते हैं। बदलें इस रवश को। अपने आप को कम से कम इस बात के लिए तैयार कर लें कि बातों को परखना सीखें, अपनी आंखें खुली रखें, आपके इर्द गिर्द माहौल में जो कुछ हो रहा है उस पे नज़र रखें। इतने सादा ना बने, लोग आपको बेच देंगे। पहले भी बिकते रहे हैं और इस तरह बिकते रहे हैं हम लोग कि हमें खुद पता नहीं होता कि हम बिक गए। इस रवश को भी आपने खुद से बदलना है। नहीं बदलेंगे तो फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर बेशक आप, अभी तो मैंने सफ़र किया है, आप भी पंजाब तक का सफ़र कर लेंगे तो तब्दीली नहीं आएगी। करना आपको खुद पड़ेगा। और ये अगर कोई बंदा आपको ये आके कहता है कि मेरे पास कारून का खजाना है, मैं आप पे लुटाता हूँ, तो पहली बार जरूर उस पर शक करें कि आखिर मुझ पे क्यों लुटाता है। इसका भी तो कोई मफाद होगा। इसके पास लुटाने के लिए सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो इसका हल्का या अहबाब होगा। उस हल्का या अहबाब को चेक कीजिए कि वहाँ उसने क्या किया है। आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, आंखें खुल जाएंगी आपकी। और अगर आंखें खुल जाएं तो फिर खुदा के लिए अपने आप को बचा लें। कतील उससे बढ़ के मुनाफिक नहीं कोई कतील, उससे बढ़ के मुनाफिक नहीं कोई कतील, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि सच को सच कह सकें, सफ़ेद को सफ़ेद कह सकें और काले को काला कह सकें। और अगले बंदे को पता हो कि तेरे घुमंड की धज्जियां उड़ा भी सकता हूँ, मगर क्या करूँ दरमिया में मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत को कभी ना छोड़ें। और सच तो ये है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। मैंने बहुत सारा आपका वक्त ले लिया, कोशिश की इशारतन कनायतन तफसील के साथ, कहीं पे तफसील कहीं पे मुख्तसर, आपको कुछ न कुछ दे के जाऊँ, कुछ न कुछ आइडियाज़ आपको दे जाऊँ कि आपके करने वाले काम क्या हैं। अगर समझ गए तो मेरी आखिरत भी समझ जाएगी, और अगर ना समझे तो ये दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत में भी कोई भलाई की तवक्को रखना फजूल होगी। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह आपको और मुझे अपनी रहमतों के हसार में रखे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।